नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वामीदास कैंपेनर के खिलाफ निराधार मामला दर्ज किया गया। 27 अप्रैल को बीदर तालुका के मिर्जापुर गांव में हिंदू हृदय पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने जाति सर्वेक्षण पर विवाद के लिए भाजपा की आलोचना की। भाजपा एमएलसी रवि कुमार ने कहा कि हर फंसे हुए पर्यटक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। पहलगाम एसपीजी ने दरवाजा खोला, पीएम ने मना कर दिया क्लिप वायरल। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की जरूरी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले के बाद पहलगाम में स्थिति का जायजा लिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दलित रक्षणा होराटा समिति के जिला अध्यक्ष प्रकाश हड़केर ने कार्यकर्ता स्वामीदास कैंपेनर के खिलाफ निराधार मामला दर्ज कराया। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री के बीदर जिले में पहुंचने के दिन सुबह 5 बजे स्वामीदास कैंपेनर और शशिकांत एस पाटिल को गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने उन पर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಿನಾಕಾರಣ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅವರು ದಲಿತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಬ್ಬಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭೋಗಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸಚಿವರ ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದದೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ದರೋಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತೋ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಚಿವರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಜನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಾದವು. ATM ದರೋಡೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ಸುಮಾರು 95 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋರು ವಿಫಲರಾಗ್ಯಾರ ಪೊಲೀಸರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಚಿವರು ಆಗಿರಿ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆದರವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ್ರಿ. ನನ್ನಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ನಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಹೋರಾಟಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. छत्रपति शिवाजी महाराज जनता संघ की ओर से पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संदीप पाटिल ने कहा कि 27 अप्रैल को बीदर तालुके के मिर्जापुर के गांव में हिंदू हृदय पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पूर्व केंद्रीय मंत्री और विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल करेंगे। इस अवसर पर मराठा समुदाय के नेता दिगंबर राव मानकेरी, अमिता चिंचोले और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜನತಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರಬೇಕಂತಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಏನ್ ಸರ್ 5,000 6,000 ತನಕ ಜಮಾ ಎಷ್ಟು 14,000 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸವನಗುಡ ಅಂತ 14,000 रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। जाति सर्वेक्षण के खिलाफ भाजपा द्वारा अभियान चलाए जाने तथा मूल रिपोर्ट के गायब होने का दावा किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को रिपोर्ट पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे पिछली भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने प्रस्तुत किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस नेताओं ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है, सिद्धरामैया ने दावा किया कि रिपोर्ट में कोई खामी नहीं है और यदि कोई खामी होगी तो उसे सुधार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को अपनी राय देने के लिए कहा गया है और वे इस पर विचार करेंगे तथा अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जब उन्हें भाजपा के कथित दावों के बारे में बताया गया तो मुसलमानों की जनसंख्या 1984 की तुलना में 90% बढ़ी है, जबकि लिंगायतों की जनसंख्या केवल 8% बढ़ी है। तो उन्होंने कहा है कि हेगड़े के कंथराज आयोग के निष्कर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने सर्वेक्षण का बचाव करते हुए कहा कि इससे यह पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है तथा विभिन्न समुदायों की स्थिति क्या है, जिससे नीतियों के निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक भाजपा एमएलसी रवि कुमार ने कहा, यह सिर्फ हमला नहीं है, यह कत्लेआम है, एक निर्दयी हत्याकांड जिसमें निर्दोष लोगों की निर्दयता से हत्या की गई। कथित तौर पर आतंकवादियों ने बेहद सटीकता से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। कुमार ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे घृणा से भरी हिंसा का सबसे घृणित और जानबूझकर किया गया प्रदर्शन बताया। न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि मानव रूपी इन राक्षसों का शिकार नहीं कर लिया जाता और न्याय नहीं मिल जाता। यह खून बेकार नहीं जाएगा। कुमार ने राज्य सरकार से तेजी से कार्यवाही करने का आग्रह किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अनुसार शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में टॉप किया है, जबकि हर्षिता गोयल और डोंगरे अर्चित पराग को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। मंगलवार को नतीजे घोषित किए गए हैं। टॉपर दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल की है। कर्नाटका के 2 डॉक्टर शीर्ष 50 रैंक धारकों में शामिल हैं। कर्नाटका से 30 से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। 29 वर्षीय डॉक्टर आर रंगमंजू ने 24वीं रैंक हासिल की है, जबकि डॉक्टर सचिन बसवराज गुट्टूर ने 41वीं रैंक हासिल की है। कुछ साल पहले दिवंगत हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी आर रमेश के बेटे रंगमंजू ने बताया कि वे अपने आखिरी प्रयास में परीक्षा पास करने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना कठिन था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पहले 3 प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया। अपने चौथे और 5वें प्रयास में मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल रहा। आखिरी प्रयास में मैंने तीनों चरण पास कर लिए। डॉक्टर सचिन, जो रानेबेन्नूर के कोड़ियाल गांव के रहने वाले हैं, ने अपने चौथे प्रयास में परीक्षा पास की। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार में डिग्री पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सचिन ने कहा कि वे अपने पिता की इच्छा के अनुसार डॉक्टर बने और फिर परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले 3 प्रयासों में असफल होने के बाद भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के।
बुधवार की सुबह दिल्ली पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर एक संक्षिप्त बैठक की, जिस बात से नेटिजन्स का ध्यान खींचा वह था एसपीजी अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कार का दरवाजा खोलने पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने बैठक के लिए तुरंत बैठने से इनकार कर दिया। आपातकालीन बैठक विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की अपनी राज्य की यात्रा को बीच में छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति का जायजा लिया। 22 अप्रैल को अनंतनाग के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की। इस नृशंस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली। पहलगाम आतंकवादी हमले पर बोलते हुए डोडा एसएसपी संदीप कुमार मेहता ने 23 अप्रैल को बताया कि कल की घटना के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक यहां सब कुछ ठीक है। कल की घटना के बाद हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि घटना के मद्देनजर भावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ भी कहने से पहले सावधानी से सोचें, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यहां अभी सब कुछ शांतिपूर्ण है, संदीप कुमार मेहता ने कहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इस घटना के खिलाफ कांग्रेस के एकजुट समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह एक चौंकाने वाली और सबसे निंदनीय घटना थी। पूरा देश मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने में एकजुट है। हम सभी अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकी हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देश को इस घटना के खिलाफ स्पष्ट जवाब देना होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 23 अप्रैल को जयपुर पहुंचे। इससे पहले आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया। वीपी वेंस भारत के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सऊदी अरब में भारतीय दूत सुहेल एजाज खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हाल ही में हुए आतंकी हमले पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, हालिया आतंकी हमले पर चर्चा हुई है। महामहिम क्राउन प्रिंस ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दोनों नेताओं ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। As I said, the recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. Another thing I can answer you on the MOUs. As I said, there were 4 MOUs signed. One between the space agencies of both the countries. Second MOUs were signed between the health ministries. Then there was MOU signed between NADA and the Saudi Anti-Doping Agency, and there was the MOU signed between the Saudi Post and the Indian Postal Agency. And on the investment side, as I said, both the leaders noted the progress made under the high-level task force, where huge progress has been made to facilitate the investment from both sides. Particularly, agreement was made on the 2 refineries which will be made as a joint ventures in India, and there was a broad agreement on various taxation related issues to give the impetus to the investment. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब की अपनी राज्य की यात्रा को बीच में ही रोक दिया और बुधवार को जेदा से भारत के लिए रवाना हुए। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब द्वारा
आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज को छोड़ दिया और अपनी यात्रा को बीच में ही रोकने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्हें कल रात वापस लौटना था, लेकिन अब वे बुधवार सुबह जल्दी भारत पहुंचेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी राजकीय यात्रा समाप्त की और भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने मंगलवार को जेदा में दूसरी बार सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की सह अध्यक्षता की। सऊदी अरब के जेदा में होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रवासियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ देश की अपनी यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी नेताओं की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा किए हैं। कैसे उद्योग वापस उछाल सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्में अब परियोजनाओं की तरह है जो फिल्म निर्माताओं को अधिक राजस्व दिला सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म निर्माताओं को पटकथा, लेखकों, संवादों और रचनात्मकता पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले, वो ओरिजिनलिटी आज नहीं है। ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर भी बोरिंग हो जाती है और उसका ट्रैक छूट जाता है। वो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन राइटिंग, डायलॉग राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो। जब आप फिल्म में पैसा डालते हैं और आप देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या कारण समझते हैं सर, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। एक ज़माना आपने देखा होगा कि सलीम जावेद साहब के नाम पे फिल्म बिकती थी। आज शायद आपको लास्ट 5 साल में कोई बड़ा राइटर की फिल्म बिकी ऐसा पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फोकस करें कि बॉक्स ऑफिस पे कैसी रहेगी फिल्म, रादर देन आज क्या हो रहा है कि भाई ये मैं फिल्म बना रहा हूँ तो उसका मुझे OTT स्ट्रीमिंग राइट इतना मिलेगा, सैटेलाइट राइट इतना मिलेगा और म्यूज़िक राइट इतना मिलेगा, ओवरसीज राइट्स इतने मिलेंगे। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, लास्ट में बॉक्स ऑफिस गिना जाता है। एक ज़माना ये था 80s में 90s में, और कोई कोलेटरल बिजनेस होता ही नहीं था। बॉक्स ऑफिस वॉज द ओनली बिजनेस। सो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कि वो टिकट लेके सिनेमा हॉल में आएंगे कि नहीं, वो ध्यान में रखते हुए ही फिल्में लिखी जाती थी और बनाई जाती थी। आज अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है क्योंकि OTT की मानसिकता अलग है, सैटेलाइट की मानसिकता अलग है, ओवरसीज़ वाले अलग है। म्यूज़िक का ज़्यादा पैसा लेने के लिए मैं ज़बरदस्ती कुछ म्यूज़िक डाल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू मुझे लगता है कि वी हैव completely become like a इंस्पायर्ड इंडस्ट्री। हम साउथ से इंस्पायर होते हैं, हम कोरिया से इंस्पायर होते हैं, हम ये लैंग्वेज से इंस्पायर। तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले, वो ओरिजिनलिटी आज। नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक स्पर्धा पर ओलंपिक
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि जब मैं खेलने के लिए विदेश जाता था तो देखता था कि बहुत अच्छे आयोजन हो रहे हैं और लोग उनका खूब समर्थन करते हैं। मैं हमेशा चाहता था कि भारत में भी ऐसा ही आयोजन हो जहां विश्व स्तर के एथलीट प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत आए। आखिरकार वह सपना सच हो रहा है। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वामीदास केम्पेनोर के खिलाफ निराधार मामला दर्ज किया गया। 27 अप्रैल को बीदर तालुका के मिर्जापुर गांव में हिंदू हृदय पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने जाति सर्वेक्षण पर विवाद के लिए भाजपा की आलोचना की। भाजपा एमएलसी रवि कुमार ने कहा कि हर फंसे हुए पर्यटक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। पहलगाम एसपीजी ने दरवाजा खोला, पीएम ने मना कर दिया क्लिप वायरल। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की जरूरी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले के बाद पहलगाम में स्थिति का जायजा लिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।